Hi everyone, this is my first YouTube video. Uh, this channel will be based on especially class 11-12 chemistry. Okay, so यहाँ पे हम लोग इधर हिंदी या फिर इंग्लिश में डिस्कस करेंगे. Okay, so स्पेशली MCQ ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके अलावा कोई सब्जेक्टिव टॉपिक्स कैसे CBSE या ISC में कैसे एग्ज़ाम में लिखते हैं आंसर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी वेस्ट बंगाल CBSE एंड ISC बोर्ड. ओके, सो टू एवरीबॉडी. ओके, and see how it goes. Let's discuss the atomic structures chapter. Okay, स्पेशली जो MCQ आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, which of the following conclusions could not be derived from Rutherford's alpha particles scattering experiment? There are four options which you see. Number one is most of the spaces of an atom is empty. Number two is the radius of the atom is about 10 to the power minus 10 meter, while that of the nucleus is 10 to the power minus 5 meter. Okay, so these four options clearly you can see. Number C option is electrons move in a circular path of fixed energy called orbits, and number 4 is electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. Which of these things cannot be, or sorry, could not be derived from Rutherford's alpha particle experiment? First option we know is true. Why? Because in the Rutherford alpha scattering experiment maximum particle goes without any deflection. Okay, तो कि बहुत सारी पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन से गया था, तो दैट मीन्स द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर वैकेंट. सेकेंड ऑप्शन इज गिवन दैट एटम का रेडियस दिया हुआ है एंड न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ है, जो भी बहुत ही छोटा रेडियस है 10 to the power minus 15. Okay, femtometer. So these also derived from the Rutherford's experiment, because we know that in Rutherford's experiment it was said कि out of 20,000 particle only one particle comes back at right direction. one particle come back at 180 degree angle. So कि एक पार्टिकल 180 डिग्री में घूम के आया था, तो that means the particle nucleus size is very small. Okay, so option B also is correct. Now coming to option C. Option C, electrons move in a circular path of fixed energy called orbitals. वो भी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से बोला गया था. ओके, या नहीं, ये फिक्स्ड एनर्जी वाला पार्ट सब ठीक है. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट दोज हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, ये बोला नहीं गया था, ये डिराइव नहीं किया गया था. ओके, देन सॉरी, ये डिराइव नहीं किया गया था. ओके, then last one, electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. ये भी डिराइव किया गया था कि there is a attraction force between electron and nucleus. Okay, because of the positive charge of the nucleus and electron having negative charge. तो ये फोर्थ भी डिराइव. तो यहाँ पे फिक्स्ड एनर्जी वाला पोर्ट नहीं बोला था, तो ये ऑप्शन सी होगा. ओके, देन goes to the next question. Okay, next question says that Mulliken's oil drop experiment and diffraction effect showed respectively wave nature and particle nature, particle and wave nature,
Mulliken showed both the nature, diffraction shows both the nature. Mulliken's oil drop experiment, सब लोगों को पता है मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या नेचर बोला गया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर बोला गया था. एंड diffraction effect, diffraction effect happens when there is wave character, so option B will be correct. Okay, now coming to number C. What is there in number C? Select the correct statement based on the Rutherford model. Okay, what is said? The most of the spaces in an atom between the nucleus and the revolving electron is empty. Number B, electrons are called planetary electrons. Okay. Number C, protons give positive charges of the nucleus and nuclear mass is determined by proton and neutron. Okay. Number D, all of them are correct statement. Now see, you can clearly see the first option. Most of the spaces is empty. Okay, this is Rutherford's model. Number B, electrons are called planetary electrons. Electrons are called planetary electrons because they move in the circular path. This is also true based on the Rutherford's experiment. Number C, protons give positive charge. Protons give positive charge on the nucleus. That's true. Okay, nuclear mass is determined by proton and neutron. Proton and neutron. Okay, now there is the little catch. Why? Because during Rutherford experiment no neutron were discovered. Okay, neutron were discovered later on, and Rutherford did not include neutron. Okay, so in option C little bit, and in the, so option D also is not correct. Okay, option D is also not correct because Rutherford's model had no neutron. Okay, either option D would have if only proton was there. Okay, so now see, so these are the three questions which we had discussed. Now fourth option, a standing wave. Now discuss the question number 4. Question number 4 said that okay, 35 centimeter long yes, with long wavelength wave, standing wave with 6 nodes. ओके, सो तुम्हें तो पता है कि नोट्स का फार्मूला है, टोटल नोट्स का फार्मूला है n+1. n+1 इक्वल टू 6. n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n+1 इक्वल टू 6. सो वहाँ से n निकल जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5. ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया. अभी लेंथ आ गया 35 सेंटीमीटर. ओके, सो ये हो गया लेंथ, और उसके साथ लेंथ के साथ आ गया तुम्हारा एन का वैल्यू आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेंथ आ गया. अभी क्या निकालने के लिए बोला वेव लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव. ओके, तो वेव लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव के बारे में एक फार्मूला है. ये हो पाता है या फिर अगर नहीं पता है तो लेट्स सी दिस फार्मूला. वेव लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव का फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू एन, लैम्डा इक्वल टू, शोइंग यू वंस, वेट ए सेकेंड, लैम्डा इक्वल टू 2l/n. ओके, तो वहाँ पे l का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है, तो इजीली तुम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो लैम्डा का वैल्यू. ओके, और जो लैम्डा का वैल्यू आफ्टर पुटिंग दोज वैल्यू, लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो होगा 14 एंड यूनिट तो सेंटीमीटर ही होगा. ओके, सो लैम्डा का वैल्यू मिल गया, सो वेवलेंथ का वैल्यू मिल गया. तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.
ओके, तीनों रूल है, कौन सा वायोलेट हुआ है? ओके, सी तीनों रूल में से फर्स्ट देखते हैं अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल के अंदर एनर्जी करके बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे 4s पहले होना चाहिए था, उसके बाद 3D में, उसके बाद 4p में, लेकिन 4s 3D को विदाउट फुलफिल नहीं करके 4p में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये वायलेट हो गया अबव। नहीं देखो पाउलिंग्स लॉ क्या बोला, 4p चारों क्वांटम नंबर एक ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्लियरली शोज इन द 4p जो पेयरिंग कॉम्बिनेशन में है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में है, तो ये पाउलिंग्स लॉ के हिसाब से नहीं होना चाहिए था। लेन आता हूँ हुन्स रूल पे, वहाँ पे क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट विद इफ देयर सेम एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन्स गोज सिंगल ओनली देन कम्स टू पेयर, बट यू कैन सी दैट ओके 3D एंड 4s फुलफिल ही नहीं हुआ, 4p में इलेक्ट्रॉन चला गया। ओके, तो ये भी हुन्स लॉ भी वायलेटेड यहाँ पे है। ओके, सो you can clearly say that the 3 laws has been violated. ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा नंबर सी। ओके, सॉरी नंबर सी नहीं, नंबर डी, 3 laws has been violated. Now next thing you can see that 1s2 2s2। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन देयर ऑर्बिटल्स और सबसेल। सबसेल अगर सबसेल और ऑर्बिटल क्या है, सबसेल और ऑर्बिटल्स है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म में रहता है तो माइक्रोस्कोपिक कंडीशन हो गया क्योंकि उसका वेव नेचर है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नेचर है। ओके, तो ये तो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, अभी आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट अगर एल का वैल्यू कुड हैव वैल्यू ऑफ एल का वैल्यू में एन का वैल्यू भी इंक्लूड होता है। जनरली व्हाट वी सी दैट वैल्यू ऑफ एल ओके इज इक्वल टू मीन्स एजिमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 0 to n-1, बट अगर n-1 नहीं 0 to n होता तो क्या होता, देखो 0 to n होता, सपोज 1 के लिए होता, 1 के लिए होता एल का वैल्यू 0 भी होता 1 भी होता, तो 1s भी होता 1p भी होता, 2 के लिए होता 0 n का वैल्यू 2 के लिए होता 0 1 2, तो 2s भी होता 2p भी होता 2d भी होता, एंड n का वैल्यू 3 के लिए होता 0 1 2 3, l का वैल्यू होता तो 3s भी होता 3p 3d 3f भी होता। नो अगर वो पहले क्या करोगे, पहले उनका n प्लस एल वैल्यू निकालोगे, क्योंकि n प्लस एल वैल्यू के हिसाब से उसका एनर्जी आएगा। एनर्जी के बाद तुम लोग इलेक्ट्रॉन बिठाओगे, इलेक्ट्रॉन जब बिठाओगे तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में देन 1p में जाएगा, ओके देन 2s में देन 2p में जाएगा, देन 3s एंड 2d के सॉरी 3s एंड वो 2d होगा एक्चुअली। ओके 3s एंड 2d के अंदर कौन सा किसका एनर्जी ज़्यादा है, 3s एंड 2d के अंदर, 3s एंड 2d के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, 3s का कम है 2d का ज़्यादा है, तो क्लियरली इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 2d में पहले, उसके बाद 3s में। वो ऑप्शन ही गलत लिखा, वो 3s 3d नहीं, सेकेंड ऑप्शन 2d होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन नहीं, तुम लोग तो तब फर्स्ट ऑप्शन में जा सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा क्योंकि 3s के बाद 2d में आएगा। ओके, सो आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा क्लियरली। ओके, बट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल फिल अप इन 3s देन 2d। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, ए यूवी प्लेन with 300 nanometer okay absorb by a gas, okay then re-emitted into 2 photons,
ओके, सो पहले एक लाइट आया एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, वहाँ से दो लाइट निकला। जस्ट दिस इज द थिंग। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में सो पहले एक लाइट आया, वहाँ से दो लाइट डिवाइड हुआ, तो तुमको बोलना है एक का वेवलेंथ दिया है, जो डिवीजन के बाद री एमिनेट के बाद जो एक लाइट आया उसका वेवलेंथ दिया है 760 नैनोमीटर। तो तुमको निकालना है दूसरे लाइट का वेवलेंथ। ओके, sorry viewers, there may be some mistakes. Okay, means mistake means in the sense that some voice may fluctuate. Okay, because it is my I am just trying to record properly, but then also if mistakes happen, okay, pardon. Okay, so see, यहाँ पे तुम लोग देखो क्या लेना है, यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, एनर्जी नहीं बढ़ सकता। तो पहले जब वो एक लाइट था तो उसका जो एनर्जी था, ओके, जब वो दोनों में डिवाइड हो गया उसका एनर्जी सेम रहेगा। तो हम लोग अगर ए बोले, जो पहले एनर्जी को अगर हम ई बोले तो दूसरा एंड तीसरा एनर्जी को E1 एंड E2 बोल सकते हैं। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं ना E इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके, so now E equal to hc by lambda we know, E1 equal to hc by lambda 1 आएगा, E2 equal to hc by lambda 2 आएगा। so basically E hc by lambda equal to hc by lambda 1 प्लस hc by lambda 2, ये इक्वेशन आएगा। वो उसमें से तुम लोग ये कर सकते हो, उसमें से hc को कॉमन लेके निकाल दो। ओके, तो आएगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। ओके, लैम्डा का वैल्यू पता है क्योंकि स्टार्टिंग का लैम्डा 1 का वैल्यू पता है, तुम्हें लैम्डा 2 का वैल्यू निकालना है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट गोज टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिथियम 2 प्लस आयन in its ground state is how many times greater than the energy to remove hydrogen electron from its ground state। मतलब लिथियम 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लिथियम 2 प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाइड्रोजन से कितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे तुम लोग एक काम कर सकते हो कि लिथियम 2 प्लस है, लिथियम 2 प्लस का एनर्जी देखो, लिथियम 2 प्लस का एनर्जी कैसे ले, एनर्जी का सिंपल फार्मूला, दे आर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो बोर फार्मूला माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एन इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिथियम के लिए जेड होगा 3, एन होगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, एन होगा 1 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट कुछ नहीं बोला, ग्राउंड स्टेट बोला गया तो एन होगा 1। तो एनर्जी होगा लिथियम 2 प्लस के लिए एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे तुम लोग ये काम कर सकते हो, यहाँ पे एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोला गया, तो आई ले सकते हो, ले सकते हो। आई मतलब जो एनर्जी है उन लोगों का उसको प्लस फॉर्म में, क्योंकि आई का मतलब क्या है, आई का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को उसका सेल से निकाल के इन्फिनिट सेल में ले जाए, तो इनका वैल्यू जब इन्फिनिट हो जाएगा एनर्जी 0 हो जाएगा। तो वहाँ एक तुम लोग एक काम कर सकते हो, ये एनर्जी दोनों का कैलकुलेट कर सकते हो, ई इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर करके। हाइड्रोजन के लिए तो जेड एन 1 आएगा, बट लिथियम के लिए जेड आएगा 3, एन आएगा 1, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 आएगा। तो लिथियम के लिए आएगा 13, एनर्जी जो लगेगा, कितना एनर्जी लगेगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट जहाँ पे ले जा रहे हैं उसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी, तो उसका तो एनर्जी 0 हो गया। तो यहाँ से ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, तो देखोगे कि 9 टाइम्स आएगा एनर्जी। ओके, क्योंकि जेड स्क्वायर का लिथियम का आएगा 9, तो 9 टाइम्स एनर्जी आएगा। ओके ओके,
सो ऐसे ही तुम लोग जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर करके लिथियम एंड हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर सकते हो। एंड याद रखना एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा एनर्जी का फॉर्मूला।